morning student. Today I will teach you present continuous. कल मैंने क्लास 9 में टेंस की स्टार्टिंग की थी और कल मैंने आपको ये भी बताया था कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं और फिर उन पार्टों को भी कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous, present perfect continuous, और in the same way past indefinite, past continuous, past perfect और past perfect continuous, और इसी प्रकार future indefinite, future continuous, future perfect और future perfect continuous, इन टेंसों के बारे में मैंने कल डिस्क्राइब किया और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक्सप्लेन भी किया। और इन द सेम वे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। Present continuous. The work is continue and not time mentioned. Means कार्य है जो लगातार जारी रहता है बट समय का जिसमें उल्लेख नहीं किया जाता। That is the definition of present continuous. Helping verb. Is or am. हेल्पिंग वर्ब साइक्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है is or am। देखिए किस प्रकार से साइक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मींस साइक्रिया is or am। नंबर फर्स्ट, am will be used subject I। जो am हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट I के साथ यूज की जाएगी। सेकंड, R will be used with the plural subject। तो R हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाएगी। एंड थर्ड, and is will be used with the singular subject और एक वचनकर्ता के साथ इस का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? is or am। am will be used with the subject I के साथ am का प्रयोग करेंगे। R will be used with the plural subject, बहुवचन जो कर्ता होते हैं जस्ट लाइक द we, you, they, इनके साथ क्या क्या यूज किया जाएगा? R का। And is will be used with a singular subject और एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। और एवरी फर्स्ट जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी विल बी यूज्ड। आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों मैंने आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में क्या क्या बताया कि द वर्क इज कंटिन्यू एंड टाइम इज नॉट मेंशन। कार्य का जारी होना पाया जाए लेकिन उसमें समय का उल्लेख नहीं किया हो, टाइम नहीं दिया हो, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब is or am will be used with the subject I
are will be used with the plural subject, is will be used with the singular subject, and ing will be used in the MB first form, MB first. और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करेंगे. नोट कर सकते हैं, नोट कीजिएगा. Affirmative sentence. Subject, helping verb is, are, in, and of ing plus object plus other verb. Start. Ram is singing a song. This is the example of singular subject. Is Ram is singular subject, and with the singular subject helping verb is used. Is used. Auxiliary verb helping verb is used. Main verb sing, ing used. Object, I am telling a story. I am, जैसा कि भी just few minutes I mentioned, all helping verb, singular subject is with the subject of I am plus ing, object. You is the plural subject. With the plural subject helping verb are used. MB plus ing plus object. Affirmative sentence. बच्चों मैंने आज तुम्हें affirmative sentence साधारण वाक्य पूरा स्ट्रक्चर बताया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य होगा उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया और बारीकी से जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, सब मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा. इस प्रकार से मैंने आपको बताया. नोट डाउन द स्टूडेंट. Negative sentence.
this is the structure of negative sentence. Not is used after the helping verb. He is not cooking the. She is not cooking the food. Mostly ladies are cooking the food, not a man. इसलिए she is not cooking the food. वह खाना नहीं पका रही है. हिंदी में पका बोला जाएगा, वह खाना नहीं पका रही है. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सेम कंडीशन इंटरोगेटिव. Interrogative. Subject. ING. Subject. EW extra. In the interrogative sentence, helping verb will be used in the beginning of subject. Structure is an helping verb at the first, after subject, after first ing, after object, after extra word. Example: Are you playing match with me? क्या तुम मेरे साथ मैच खेल रहे हो? Interrogative. First part finished. Not on the student. WH word means जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो. देखिए प्रश्नवाचक की दो कंडीशन होती हैं. एक तो वो पहले आता है, उसका अभी मैं स्ट्रक्चर आपको भी बता चुका हूं, और एक जो प्रश्नवाचक है वो कहां आता है? वाक्य के बीच में. जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसका स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड का भी सेकंड पार्ट है. अभी मैंने फर्स्ट पार्ट फिनिश किया है. मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं. क्वेश्चन वर्ड दो तरह के होते हैं. प्रश्नवाचक जिसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है. जब क्या वाक्य के शुरू में आता है, जब क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के शुरू में आता है तो उसका स्ट्रक्चर मैंने भी आपको बता दिया है. और ये स्ट्रक्चर कहा गया है जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है. WH वर्ड बोलते हैं, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है. ये उसका स्ट्रक्चर है. एग्जांपल देखिए.
Why are you telling me a story? Question word after helping verb, after subject, after ing, after object. इसको हिंदी में Why are you telling me a story? तुम मुझे एक कहानी क्यों सुना रहे हो? तो बच्चों आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट किया। अफर्मेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, इंटरोगेटिव पार्ट और उसकी पहचान भी बताई और मैंने आज आपको प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसके बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नोट डाउन। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर खत्म हुआ। इसके बाद when the sentence is interrogative and not used and negative, both are the condition, interrogative and negative, then not is used after the subject. When the sentence is interrogative and negative, then not used after the subject. Not used after the subject. In the interrogative sentence and negative, not is used after the subject. In the same way, are they not calling me? Are interrogative sentence when the helping verb in the beginning, subject they, subject not, subject not. मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि जब वाक्य प्रश्नवाचक है और उसमें नहीं शब्द भी आया है तो नहीं की अंग्रेजी जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हम कर्ता के बाद लगाएंगे। इसलिए वो चाहे वो क्वेश्चन WH वर्ड बीच में हो उसका ये एग्जांपल है और जो भी मैंने जस्ट कुछ देर पहले ये इंट्रोड्यूस कराया था हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होने वाला उसका एग्जांपल भी ये है। बोथ आर द कंडीशंस। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो और उसमें नॉट भी अगर यूज हुआ तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई भी सेंटेंस है, क्वेश्चन है वगैरह है, फॉर्म वगैरह है, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, आप घर पे बच्चों यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी जो जानकारी मैंने अवेलेबल कराई है उसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। ये टॉपिक आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिनिश हुआ। कल आपको मैं इसके बारे में होमवर्क दिया जाएगा। कल आपको मैं आज आप स्वयं करना, कल मैं खुद दूंगा।